all of you to today's webinar. Mental health is a state of mental well-being that enables people to cope with the stresses of life, realize their abilities, learn and work well, and contribute to their community. It has intrinsic and instrumental value and is a basic human right. World Mental Health Day is an international day for global mental health education, awareness, and advocacy against social stigma. The 2025 year theme for World Mental Health Day is Access to Services, Mental Health in Catastrophes and Emergencies. This theme emphasizes the importance to vulnerable individuals and communities affected by emergencies to support their healing and recovery. I welcome our today Preeti to talk about Mental Health Day theme. Before going into the today's topic, I'm happy to introduce our today's speaker, Professor Satya Preeti, Principal in Babu Ram Chandra Singh Institute of Nursing, Ayodhya. She has completed her GNM in 2004 in Child Jesus School of Nursing in Tamil Nadu, and then she completed post basic nursing in Sarvodaya College of Nursing, Karnataka in the year of 2009. Then she completed MSc Nursing in Sara Nursing College, Darapuram, Tamil Nadu in the year of 2012. She also completed Diploma in Community Mental Health Nursing in Nimans, Bangalore. At present, she is working in Babu Ramchandra Singh Institute of Nursing and Paramedical College, Ayodhya. She organized and participated in many national and international level conferences, paper presentations, and workshops. She also published many articles in national and international journals. I welcome you all once again to this webinar. Without a further delay, let's start a webinar on access to services, mental health catastrophes, and emergencies. Over to you, madam. You can start your presentations. Good morning to all. First of all, I like to thank Dr. Meena Kumari madam for providing this opportunity to me, and then my management for accepting this, and all the participants. Now I will start directly with the content. So we are going to see, as October 10, we all have been celebrated already, that is World Mental Health Day. So everyone knows that. So you can see here, World Mental Health Day. So usually what we think, we all are thinking, health is always our physical health. If we have headache, if we have fever, we can take the medicine and we are all right. We are happy. We are living a very good life. But other side, most of the time we are not concentrating. That is what our mental health. You can see here the quote, the peace of our mind, the peace in our heart, and peace in our soul. This all things together comes mental health. So how we can get it? So mental health, if we want to be mentally healthy, we need to laugh. Many people are doing nowadays as a therapy, laughter therapy, to solve many of the diseases. And how much love we can show to others. So these all the things will make an individual to be the mentally healthy. So अभी सब यहाँ देख सकते हो, मन बीमार हो तो तन बीमार हो जाता है और उत्साह उम्मीद खुशी सब खो जाता है. इसका मतलब सब लोग जान सकते, हम लोग दिमाग के तरफ से सही नहीं है तो कुछ भी हम लोग का सही नहीं रहेगा, हम लोग का शरीर भी सही नहीं रहेगा वहां पे. सो इसकी वजह से मेंटल हेल्थ ये सबसे जरूरी है हम सबके लिए. अभी हम लोग आ रहे हैं इस साल का 2025 का, हम लोग अलग अलग साल में अलग अलग थीम को लेके जाते थे. बट इन दिस ईयर व्हाई दिस थीम हैज बीन सेलेक्टेड, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इज इट मैटर समथिंग? यस, ऑफ कोर्स ये बहुत जरूरी था अभी के टाइम पे. एक्सेस टू सर्विसेज, मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफ्स एंड इमरजेंसीज. सो इसका मतलब क्या है? कुछ चीज ऐसे हो रहा है कहाँ पे अर्जेंट जरूरी है,
अर्जेंट नीड ऑफ साइकोलॉजिकल सपोर्ट का जरूरी है, लाइक क्राइसिस सिचुएशन, दैट इज नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ग्लोबल इमरजेंसीज बढ़ते जा रहा है। सो ये सब जहां पे हम लोग का मेंटल हेल्थ केयर का जरूरत का जरूरी पड़ रहा है। सो अभी हम लोग ये भी देखते हैं कैटास्ट्रोफ्स क्या होता है, इसका मतलब क्या है, वो क्यों हम लोग को अर्जेंट पड़ रहा है, अर्जेंट जरूरी का क्यों पड़ रहा है। अभी में हम लोग ये देखते हैं, ये साल में एक बार अक्टूबर 10 को हम लोग वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बनाते हैं। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? इट प्रमोट्स मेंटल हेल्थ अवेयरनेस and advocates for action, mental health. So this for this reason, this is the main important reason for promoting the mental awareness to the people. Every year we are celebrating the mental health day, because other days we are not at all concentrating on the mental health. At least yearly once let everyone celebrate the mental health day and make the awareness to all the people. So now we are seeing what is catastrophe. It means an event causing great and usually sudden damage to suffering. So it means which is not planned. आप उसके लिए प्लान करके नहीं रख रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। सो सडनली कुछ डैमेज, एग्जाम्पल आप से देख सकते हो, अभी बहुत चीज यहाँ पे हो रहा है, एर्थक्वेक हो रहा है। आप सोचिए एर्थक्वेक के टाइम पे आप सोच के रखेंगे पहले से आज एर्थक्वेक हो जाएगा बोल के, किसी को पता नहीं चलता है। सो उसी टाइम पे ये सडन डैमेज कहाँ पे होता है? इंसान के माइंड पे, दिमाग में। सो दैट इज द मेन रीजन this year we are doing this thing. So what are the purpose and goals? So mainly we are focusing on the 4 purposes. So one is raise the awareness and mobilize the action and reduce stigma, promote accessible services. These are the 4 main purposes we are all concentrating. So first one, raise awareness. हम लोग awareness कैसे raise कर सकते हैं? आप लोग सोचिए हम लोग कहाँ पे अवेयरनेस रेज करना पड़ता है? मेनली कम्युनिटी। सो सबसे ये धरती पे सब जहां पे मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल वेलबीइंग के बारे में, और कुछ लोग मेंटल हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उनको सबको ये पहुंचना है। तो मेन चीज है वहां पे उनको हम लोग अवेयरनेस देना। वो कैसे देंगे? कम्युनिटी में हम लोग कम्युनिटी में हेल्थ एजुकेशन देते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं। अभी मेंटल हेल्थ डे में हम लोग बहुत लोग मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबीइंग के बारे में, उसके अवेयरनेस के बारे में हम लोग बहुत चीज किए हैं। ये सब चीज उन लोग के अंदर कुछ ना कुछ, हाँ मेंटल हेल्थ जरूरी है, मेरा दिमाग और मेरा मन खुश रहेगा तो मेरा सब अच्छा होता है, ये उनके अंदर रहेगा। दूसरी चीज इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग एक इंडिविजुअल भी हम लोग उसको कर सकते हैं, मोबिलाइज द एक्शन, और गवर्नमेंट की तरफ से भी हम लोग बहुत चीज, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कुछ हम लोग को आता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एनजीओस रहते हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस रहता है ऐसे एक सब चीज को प्रमोट करने के लिए, उन लोग के साथ में हम लोग मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और सपोर्ट सिस्टम को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। सो लाइक दिस, mobilize the action. And the third one, reduce stigma. So what we mean by stigma? That is the main thing. In everywhere, example in medical surgical, if we see also, or if the patient is admitted with any HIV or AIDS or hepatitis B, all these conditions also, people are facing with stigma. The main stigma which is focusing on the mental health. कोई mentally ill होता है, उनको हम लोग स्टिग्मा में रखते हैं। स्टिग्मा का मतलब क्या है? मैं किस चीज के बारे में क्या सोचती हूँ, दैट इज स्टिग्मा। एक चीज के ऊपर मेरा मन क्या है, ये गलत, ये अच्छा नहीं है, मेरा फीलिंग, मेंटली कोई तबीयत खराब हो गया तो उनका घर वाले खुद ये सोचते हैं इनको मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगी तो मेरे आस पास वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में, ये हम लोग को बुरा हो जाएगा, उन लोग हम लोग को अलग करके रख देंगे। ये सब चीज को उन लोग सोचना शुरू करते हैं। दैट इज व्हाट
स्टिग्मा। ये स्टिग्मा के वजह से बहुत लोग मेंटल इलनेस के साथ आज तक ट्रीटमेंट लेने नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से एज ए नर्स हम लोग ये स्टिग्मा को कम करना है। वी नीड टू रिड्यूस द स्टिग्मा। स्टिग्मा हाउ टू रिड्यूस? by the education, by the awareness. We need to promote an open and understanding environment. ये एक नॉर्मल डिजीज कंडीशन है, ये भी ठीक हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। सबका शरीर में कैसे बीमारी होता है, ऐसे दिमाग में भी बीमारी होता है किसी कारण के वजह से, उसको हम लोग ट्रीट करना है। इतना हम लोग उनको समझा के हम लोग स्टिग्मा को रिड्यूस कर सकते हैं। Fourth, we are moving on to the fourth point, that is promote accessible services. सब चीज कर दिए, उनको अवेयरनेस दे दिए, हम लोग एक्शन मोबिलाइज कर दिए उनको सब चीज बताने के लिए, और स्टिग्मा को भी हटा दिया। अभी सब रेडी हैं जाने के लिए हॉस्पिटल, दे आर रेडी टू मूव टू द हॉस्पिटल टू गेट द ट्रीटमेंट, बट वेयर इज द सर्विस? वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू मूव ऑन टू द क्वालिटी मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन. So for that, we need to promote the accessible service also. So now you can see here in this picture, two things you can see. One is World Mental Health Day, three things focusing on that, what we have discussed now, that is promote mental wellness, see awareness and support mental health. हम लोग how we can do it? So one is promote mental health, practice self-care. How I am, how I am happy, how I am going to be. Okay, so खुद को अच्छे से रखने की वजह से, खुद के ऊपर हम लोग केयर करने की वजह से भी हम लोग का मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। क्योंकि आप एक जहां पे जा रहे हो, शादी में जाते हो, ऑटोमेटिकली क्या होता है, वहां पे आप ये सोचते हो, आप अच्छे से ड्रेस करके जा रहे हो तो सब लोग आपको बोलेंगे आपका ड्रेस अच्छा है, आप अच्छा दिख रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका मन क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, अब मेंटली क्या हो जाएंगे, हेल्दी हो जाते हो। सो सेल्फ केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द टाइम एंड सीक सपोर्ट। कोई भी जरूरत पड़ता है, वी नीड टू आस्क फॉर द सपोर्ट, किससे कांटेक्ट करना है, क्या बात करना है, दीज ऑल थिंग्स यू नीड टू ट्राई। And the third thing is we need to reduce the stigma, what we discussed already. And the second one is raise the awareness. We already discussed this. Organize the events and share the information. कितना आप information को share कर सकते हो, कितना social media में आप upload कर सकते हो mental health related चीज को, automatically this will be providing the awareness to the people. And third one is support mental health. Listen without judgment. कोई आपके पास आ रहा है, कुछ बात करने आ रहा है, वहीं पे हाँ ये ऐसे ही रहेगा, इनसे कुछ सुनने का बातें नहीं है, वो सही बोले गलत बोले उससे हम लोग का मतलब नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग पहले से उनको क्या कर दिए, जज करके रख चुके हैं। सो वी नीड टू ऑफर द हेल्प। सो ये सब चीज हम लोग का होता है दिस साल का मेंटल हेल्थ डे में हम लोग फॉलो करने का। अभी थोड़ा स्टैटिस्टिक्स हम लोग देखते हैं, पे अटेंशन टू योर मेंटल हेल्थ। वो आप यहाँ पे देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स में विमेन का 1:5 विमेन मेंटल इलनेस की वजह से अफेक्ट हो जाते हैं, मेनली वो माइल्ड टू सीरियस रेंज में वो अफेक्ट हो जा रहे हैं। ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मेनी विमेन एज मेन हैव बीन डायग्नोस्ड विद एंजाइटी। मेन के ऊपर ज्यादा ये हो जाता है, एंजाइटी भी हो जाता है, और विमेन में हम लोग देखते हैं तो मेन से ज्यादा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ज्यादा रहता है। सो हम लोग we need to keep it in mind, physically healthy is important, still taking care of your body is important for your mental health. So now we are moving on to the real world example. We are talking about the catastrophes. So what is this catastrophes? We were telling few things, but really it is happening. That is the reason this year theme has been given to us, that we are going to see now. So the first one is, as everyone knows, रोज का न्यूज में हम लोग ये सुनते हैं, यूक्रेन और इसराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, how many people are affected, how many people are suffering, how many people are facing the problem. Everyone is thinking they will be having a problem with food, they will be having a problem with their dress, or they will be having problem with having a place to stay, drinking water. People are concentrating on that.
but how many of them concentrating on their mental health? How many of them knows what is happening inside their mental health? We will see in the next slides. And as everyone knows, COVID-19 pandemic, we know everyone experienced. So that given the rise in the anxiety and depression to many of the people. घर में कोई भी रहता है, थोड़ा सा खांसी आ गया, डर अंदर, कोविड आ गया क्या, कोविड आ गया क्या, हॉस्पिटल में जाओ, देख लो क्या करेंगे, क्या होगा, इतना टेंशन था, इतनी एंजाइटी था. इसके वजह से बहुत लोग लाउड वंस को लॉस भी हुआ था. दे वेंट टू डिप्रेशन. सो इसी टाइम पे हम लोग का मेंटल हेल्थ के लिए एक अपटेक हुआ था, टेली हेल्थ, टेली मेंटल हेल्थ शुरू हुआ था. अभी नेक्स्ट से 2010 में हायती एर्थक्वेक में भी वहां पे ये सिचुएशन कोविड टाइम में भी हुआ था. ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हो रहा था, मेंटल हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो रहा है. वो भी एक रीजन होता है, प्रॉपर तरीके से मेंटल हेल्थ प्रोवाइड नहीं कर पाते. और बाकी चीज हम लोग देख सकते हैं, क्लाइमेटिक डिजास्टर्स लाइक फ्लड होता है. अभी भी इतना बारिश हुआ था, बॉम्बे में कितना सारा फ्लड होता था, उसी में कितने लोग सफर करते थे. और कितने फॉरेस्ट में सडनली फायर हो जाता है, उसकी वजह से आसपास विलेज वाले कितना सफर करते हैं. और बहुत जहां पे earthquake होते रह रहा है, हम लोग रोज सुनते रह रहे हैं. एक जहां पे होता है तो बहुत जहां पे उसका अफेक्ट भी पड़ता है. सो ऑल दिस थिंग्स आर फोकस्ड बाय द पीपल, फोकस्ड बाय द गवर्नमेंट, and they are trying to help them, but are they focusing on the mental health? So these are the real world examples we are seeing. Finally, refugee crisis. Not only in this area mentioned here, you might be knowing, for many years refugees are coming from one country to another country. So their problem, the main thing you can think, अभी मैं ये बताऊंगी, यही कि मैं बहुत बच्चे से उत्तर प्रदेश से ये बोलती हूँ, आप नर्सिंग पढ़ने के बाद फॉरेन चले जाना, अगर ही पे अच्छा सैलरी मिलेगा, अच्छा से कमा लेंगे. बट बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं मैडम हम लोग यूपी से कहीं नहीं जाएंगी, मेरा मम्मी पापा मुझे छोड़ेंगे ही नहीं. सोचना थोड़ा सा, रेफ्यूजीज का क्या होगा. वो काम के लिए नहीं आए, पढ़ाई के लिए नहीं आए, उनको रोज के खाना के लिए, उनके जीवन बचाने के लिए वो यहाँ पे दूसरे कंट्री में जाते हैं. सो व्हाट इज देयर माइंडसेट, व्हाट इज देयर मेंटल हेल्थ, ये हम लोग का देखना पड़ेगा. सो दीज आर द रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स. यू कैन सी द पिक्चर्स हियर. Natural disasters, war, pandemic, and displacement. The distance because of the death or any dispute between the families, friends, these also will affect the mental health. Nowadays, many things are happening, so these all will be affected. So now we are moving on to the what happened. Now I was telling people are not concentrating on the mental health, people are not concentrating on the mental health, right? So if we are not concentrating on the mental health, what is happening to the individual due to this catastrophe and in emergency situations and all the problems? Psychological trauma. आप ये सोचो, हम लोग के शरीर में कुछ भी होता है, दूसरे को दिख भी जाता है, उसका मेडिसिन लगाने से जल्दी ठीक हो जाता है. बट इस साइकोलॉजिकल ट्रोमा, इट इज इनविजिबल. आप उसको देख नहीं सकते हो. उनके मन में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, उनके अंदर क्या चल रहा है, ये सब चीज सबको पता नहीं चलता है. बट ये क्या होता है, बहुत डीप रहता है. इसका वी कैन सी फ्यू थिंग्स हियर. एज अ नर्स हम लोग का काम ये होता है, एज अ मेंटल हेल्थ नर्स, healing the invisible wounds. किसका मन के अंदर wound है, वो देख नहीं पा रहे हैं, उसको हील करने का काम हम लोग का है. और दूसरा, साइकोलॉजिकल अब्यूज कुछ भी होता है, वो कभी भी लाउड नहीं रहता है. कोई किसी को साइकोलॉजिकली अब्यूज कर रहा है, उनको मन को दुख कर रहा है, हर्ट कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है,
ये सब चीज को वो जिएंगी, वो रोएंगी, बट किसी को वो कभी बता नहीं पाते हैं. सो दैट इज इनविजिबल. अभी एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख रहे हैं. आप लोग सब लोग जानते हैं घर में हम लोग सब गैस यूज करते हैं, गैस का लाइटर भी यूज करते हैं हम लोग. सो उसमें आप लोग कभी सोचें, हम लोग लाइटर यूज करते हैं, वो लाइटिंग करने के टाइम पे कुछ दिखता नहीं है, बट गैस चलता है, आग आता है उसमें. सो गैस लाइटिंग फील्स इनविजिबल बट इट हिट्स हार्ड. ये बहुत ज्यादा हम लोग का बाहर आता है. सो क्या क्या होता है ऐसे इंसान रहेगा तो, किसके अंदर साइकोलॉजिकल ट्रोमा रहता है. ऑटोमेटिकली हम लोग को विजिबल साइन कुछ भी नहीं दिखेगा. यहाँ पे ये लग गया वो लग गया हम लोग पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दिखेगा ही नहीं हम लोग का. और उनको कॉन्फिडेंट कभी भी कम रहेगा, और उनको इमोशनल को वो कभी भी मैनिपुलेट करते रहेंगे. उनके अंदर इतना दुख रहेगा, फिर भी दूसरे के सामने स्माइलिंग फेस से खड़े रहेंगे. दूसरे के सामने बाकी लोग हंसते हैं, ये भी हंसेंगे, बट वो अंदर से उनका दर्द के साथ, वो बहुत बड़ा ट्रोमा के साथ वो रहते हैं. और सबटिल अनकवर्ड, यहाँ पे सबटिल वो कभी भी अंडर स्टेट में वो रहता है, भी चीज होता है. और कवर्ड में उनके अंदर ऐसे स्ट्रेस होगा वो पूरा हिडन रहे, कभी दिखाएंगी नहीं. और दूसरा उनका सेल्फ डाउट रहेगा, मेरे वजह से हुआ है क्या. उससे बाहर आने के लिए कोशिश करने के लिए बहुत ट्राई करेंगे. फाइनली धीरे धीरे उससे बाहर आने के लिए वो कोशिश करेंगे. सो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इज ऑफन इनविजिबल बट डीप. सो it is our duty to handle this people with love and care and provide them the psychological support. मेरा नेटवर्क. So the psychological impact of disasters. क्या क्या डिसीज हो सकता है ये साइकोलॉजिकली एक इंसान अफेक्ट होने के वजह से. देखिए, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द 1%, 2% here. We are talking about worldwide catastrophes. Lakhs and lakhs of people in this world are suffering. So what are the disease conditions, mental health issues can happen to them? As we know, post-traumatic stress disorder, because of the incident which has happened in their life, it will stay in their mind forever. That is one. And another one, depression, anxiety, and some people will move on to the substance abuse to come out of that stress. And mainly the vulnerable groups are children, elderly, and displaced persons. सो इम्पोर्टेंस ऑफ ईयरली इंटरवेंशन. अभी हम लोग देख लिए क्या होगा, कैसे रहेंगी वो, क्या क्या प्रॉब्लम होगा, ये सब हम लोग देख चुके हैं. सो नाउ वी शुड नो. सब में हम लोग पहला ये बोलते हैं ईयरली इंटरवेंशन, ये जरूरी है. सो रेड्यूस लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल डैमेज. कितना जल्दी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उतने से ज्यादा हम लोग साइकोलॉजिकल डैमेज को हम लोग कम करवा सकते. और दूसरी चीज ये ऑलरेडी मैं बताई थी, एक इंसान के बारे में नहीं है, एक बहुत ज्यादा एक कम्युनिटी. सो एक जहां के इन पीपल सबके लिए है. सो फास्टर कम्युनिटी रिकवरी के लिए भी हम लोग जल्द से जल्दी ईयरली इंटरवेंशन करना जरूरी है. एंड द थर्ड वन इज रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड. If we find out yearly only, we can provide the psychological first aid to the people. So what are the assess problem? Everything is there, but what is the problem then? We give awareness, we know what will happen, we are trying to solve it, but still what are the problems can happen? Already we have discussed few things and still we will see.
So services are often unavailable or inaccessible during emergencies. This you can able to understand. Services are unavailable. You can take an example. उत्तर प्रदेश में हम लोग के कितने साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स हैं, बच्चे लोग को पोस्टिंग भेजने में हम लोग कितना फेस कर रहे हैं. सो इससे हम लोग को अच्छे से ये पता चल रहा है सर्विसेज कितना कम अवेलेबल है. सो इमरजेंसी में असेस करना मुश्किल हो जा रहा है. Another thing, as we discussed, stigma is another thing, and infrastructure collapse, proper infrastructure नहीं रहता है, and lack of trained personnel. बहुत लोग को ये नहीं पता एक इंसान साइकोलॉजिकली अफेक्ट हुआ है तो उन्हीं के साथ कैसे बात करना है. Nowadays, in this time, people are hurting another people a lot, but they are not ready to realize. So they can't able to provide the comfort to other people. So this is the situation nowadays happening. So next one is disproportionate impact. There is a wrong impact on the children, elderly and displaced population. They are the vulnerable populations where they can't, because if these people are telling something, people doesn't want to listen, people doesn't want to care. Example, children, if we take parents, when child is coming to talk to them, they are not ready to listen because they are busy with their lifestyle. They are busy with earning the money. So they won't listen what the child is talking. Same elderly and displaced populations. And barriers to assessing the mental health services. So physical assess is not available. Then trained personnel is not there. Lack of trained personnel. And language barriers is, of course, we are less. So if immediately mental health nurses are sent to a country where they doesn't know that particular language, say example from Uttar Pradesh to Tamil Nadu or South, any Kerala or any places, or from South to North India, suddenly shifting the people for providing the mental health care, how we will give? Language barrier, because language he doesn't know. Immediately it's not possible to learn, and whatever I want to express, I could not express. And what the opposite person is hearing, the health personnel who is hearing my problems, they also can't able to understand what I am telling. And the next one is cost and logistical issues. Of course, mental health. If the people are going to the hospitals, you all know how much they need to spend money, how much they are. Yes, the economically weaker section can able to pay that much amount and get the care. So these are the problems are taking place. So what assess should look like then? How the people can reach, what we can do for it, how it should be. That is what we are saying here. So psychological first aid as a basic need, of course, in this catastrophes and emergencies, first aid, psychological first aid is the main thing. What is psychological first aid? We will see in upcoming slide. And we are not going to give any medications there. We are not going to provide any therapy in the psychological first aid. And we are not going to do anything which is provided in the hospital. But something we are going to do the great thing, which will help the individual to come out of their problems. And the next one is mobile clinics and telemental health. Yes, it has been updated. It is coming up nowadays. So that will not, that is, we need to improve it more in all over the country. And integration with emergency response. We should know, as the mental health nurses, we need to be having a contact with emergency response committee peoples, and then if there is a nearby us, we should be available to go and provide the mental health care to the people. And community based and culturally sensitive care. So whatever we do, we are doing it based on community, so all the people will get awareness, all the people will know what is mental health. Then each culture is different, सब culture अलग अलग होता है.
कल्चर में एक ही जहां पे रहेंगी, अलग अलग तरीके का सोच रहता है। सो हम लोग उनको कल्चर के रिलेटेड कुछ भी चीज को हम लोग हर्ट ना करें, सेंसिटिवली हम लोग उनको हैंडल करना पड़ेगा, फिर भी उनको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को बताना पड़ता है। सो दिस like this our answers should look like. So as I told, psychological first aid, the main thing is four key components we are seeing: three C's, two P, and ENs. Yes. So what is that? So first one is we are going to provide the care for the immediate need. अभी अभी मैं उनको देख रही हूँ, देखने के बाद मुझे पता चलेगा उनका अभी जरूरत क्या है। सो उसमें मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना है, ध्यान देना है। और सेकेंड मेरे को ये करना है, उनको प्रोटेक्ट करे, वो किस चीज से डर रहे हैं, किस चीज की वजह से उनके अंदर स्ट्रेस हो रहा है। तो फर्दर दैट प्रॉब्लम, दैट थ्रेट एंड स्ट्रेस शुड नॉट बी देयर. So for that I need to protect that person, and after protecting I need to comfort and console how I can help that person, and then support for practical task. वो ओवरकम करके उसको करने के लिए प्रैक्टिकली उनको क्या करना है, सो उसके लिए हम लोग सपोर्ट करना पड़ेगा। कोई हम लोग से कुछ पूछते हैं तो वी कैन गिव सजेशंस, ऐसे कैसे आपको लगेगा, वी कैन गिव सजेशन एनीवन. Mechanism and the coping mechanism, which makes the individual come. Is it audible? Is it visible? Yes, Okay. madam. Thank you, ma'am. Thank you. So the next C is connect with social support. So social support means many organizations are available, many contact numbers are available. When they are in distress, when they are in depression, whatever the thing, they can connect to those people in the particular area also. Peoples are available. There also we can do it, and educate about normal responses. उनको हम लोग ये भी बताना पड़ेगा, ये सब चीज करने के बाद करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा एजुकेट भी देना है, वो नॉर्मली कैसे रहे। नॉर्मल रेस्पॉन्स क्या होता है कि ये इनों के अंदर एक ऐसे स्ट्रेस उनके माइंड में रहेगा, साइकोलॉजिकली वो ट्रोमा हो चुका है, उनके ब्रेन में वो आ चुका था, वो हील होने में बहुत टाइम रहता है। इसकी वजह से उनके अंदर नॉर्मल रेस्पॉन्स दिखना, सब चीज में डरेंगी, कुछ चीज करने में उनको मन नहीं रहेगा, वो सब चीज में हटेंगे पीछे। ऐसे सिचुएशन में हम लोग को ये करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट देना है, उनको एजुकेट करना है, आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये करना है, ऐसे बोल के उनको करना पड़ेगा। सो दीज आर द साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड. Here we are not providing any therapies or any medications in the psychological first aid. The next one you can see, as we have discussed, mobile health clinic. As I told you, you can see here in the picture. So it is available nowadays, but it need to be improved everywhere. In abroad countries, it is available everywhere. So it is easy for the people to take the mental health service easily. And telemedicine for mental health, you can see the picture clearly here. Sorry. This picture you can see that female
she is having a stress, her mind is pulling her to do something. You can see the nearby picture where her brain, what is happening inside due to the trauma, there is a gap. But opposite, you can see through the laptop, she is getting the mental health service through the telemedicine. So these all are updated. So barriers to mental health care. Before we have seen some barriers. Is barriers to accessing for the mental health services. Now we are seeing barriers to mental health care. So what is the mental health care barrier? So we see already that is stigma and cultural silence and lack of funding or prioritization. So we have seen no proper funding, we could not able to provide anything, and shortage of professionals. So I request, mainly in low and middle income countries. So I request everyone, try to become a psychiatric nurse to provide the care to the people, those who are mentally affected, mentally ill, to support them. You become a psychiatric nurse. And disruptive services during disaster के टाइम पे पता नहीं चलता है क्या करना है, प्रॉपर तरीके से उनको मेंटल हेल्थ सर्विस मिलता नहीं है, मेंटल हेल्थ केयर उनको मिलता नहीं है डिजास्टर टाइम, क्योंकि बहुत लोग रहेंगे बट आपके पास प्रोफेशनल बहुत कम है, वो किसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, किसको सुनेंगे, किसके पास दिमाग में बहुत ट्रोमा है, किसका साइकोलॉजिकल ट्रोमा, वो बहुत बात करना चाहते हैं बट वो बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत लोग वहां पे. सो दीज आर दी मेंटल हेल्थ केयर. सो कॉल टू एक्शन, व्हाट कैन वी डू? हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ तो कर सकते हैं एज अ मेंटल हेल्थ नर्स. हम लोग कुछ गवर्नमेंट के थ्रू, कुछ फंडिंग के थ्रू, कुछ पॉलिसीज के थ्रू, कुछ भी आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग की तरफ से हम लोग कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से. और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए हम लोग रिस्पॉन्डर्स को ट्रेन कर सकते हैं, और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं. कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बहुत चीज होता है, सब चीज में हम लोग का सपोर्ट बहुत कम रहता है. सो हम लोग उसको भी सपोर्ट करना जरूरी पड़ता है, और हम लोग अवेयरनेस को रेज करना है, स्टिग्मा को रिड्यूस करना है. अवेयरनेस राइज होता है तो ऑटोमेटिकली स्टिग्मा भी कम हो जाएगा. सो ये सब चीज हम लोग करने की वजह से भी हम लोग मेंटल हेल्थ को अच्छे से रखने के लिए बहुत लोग को मदद कर सकते हैं. सो मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम इन इमरजेंसीज अलग अलग तरीके से अवेलेबल है. मोबाइल क्लिनिक्स अवेलेबल है, टेली साइकेट्रिक अवेलेबल है, ऑनलाइन काउंसलिंग अवेलेबल है, और एनजीओस अवेलेबल. मैं ऑलरेडी बताई थी, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी करते हैं, और यूनाइटेड नेशन इंटरवेंशंस रहता है, WHO, रेड क्रॉस, MSF, इन लोग भी क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए बहुत करते हैं. अब ट्रेनिंग फॉर फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स इन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ये सब चीज अभी, वो भी इमरजेंसी सिचुएशन में, कैटास्ट्रोफ के टाइम पे हम लोग कैसे फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स को ट्रेनिंग दे हम लोग कर सकते हैं, ये सब चीज अभी चल रहा है, उसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है. सो स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव, हम लोग असेस का प्रॉब्लम देखे, कैसे कैसे होता है, क्या होता है, ये सब देखे, बट उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, उसका क्या स्ट्रैटेजीज है. कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना जरूरी पड़ता है. ये किसी तरीके से हो सकता है, गवर्नमेंट के थ्रू हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो सकता है. हम लोग सब जानते हैं, ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस हम लोग कम्युनिटी में जाते हैं, बहुत प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें मेंटल हेल्थ को भी हम लोग फोकस करके करेंगे, ऑटोमेटिकली कम्युनिटी पीपल विल बी मेंटली हेल्थी. सो कल्चरली सेंसिटिव अप्रोच हम लोग को होना चाहिए, और मेंटल हेल्थ डिजास्टर रिस्पॉन्स प्लानिंग कभी भी हम लोग के पास आना चाहिए. एक डिजास्टर हो रहा है, कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पे कैसे हम लोग मेंटल हेल्थ को देंगे, कितने लोग अवेलेबल, कितने लोग को वो हैंडल कर सकते हैं, ये सब चीज के लिए पहले से हम लोग के पास एक अच्छे से प्लान हो, हम उसको हैंडल कर सकते हैं. और स्ट्रेंथन लोकल हेल्थ केयर सिस्टम्स प्री डिजास्टर,
अभी हेल्थ केयर सिस्टम कहाँ कहाँ लोकली अवेलेबल है उनको भी अच्छे से, एग्जाम्पल छोटा छोटा क्लिनिक भी हो, कुछ हॉस्पिटल्स हो, सब जहाँ पे थोड़ा सा मेंटल हेल्थ रिलेटेड इसको करके डिजास्टर टाइम पे हम लोग कैसे सपोर्ट करेंगे, ये सब चीज के बारे में हम लोग प्लान करके बता के उसको बढ़ा क्या क्या जरूरत पड़ेगा, ये सब चीज मेनली पर्सनल्स प्रोफेशनल्स हम लोग जरूरत पड़ता है। एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, बहुत लोग मेंटल हेल्थ नर्स बनने में डरते हैं, पेशेंट मुझे क्या कर लेंगी, उनको कुछ पता नहीं चलता है, मुझे मार लेंगी तो क्या करेंगे, ये सब बहुत के दिमाग में चलता है, इसकी वजह से मेनी ऑफ द पीपल doesn't want to become a mental health nurse. But I will say, if you become a mental health nurse, you are saving the life of many people. You are making them to be happy. बहुत लोग इस धरती पे जी रहे हैं, बट कितने लोग अच्छे से खुश से जी रहे हैं, ये एक सवाल है। सब जी रहे हैं, सब उठ रहे हैं, काम में जा रहे हैं, कमा रहे हैं, लाइफ को चला रहे हैं, बट खुश है उनके अंदर, हम लोग जाके देख नहीं पाए। बट आप आपके अंदर ये क्वेश्चन पूछिए, आप खुश है सब है, आपके दिमाग में क्या है, आप क्या सोच रहे हो, ये आप सोचेंगी, definitely you will become a mental health nurse. So what are the resources and support are available for mental health? So we list the local and global mental health hotlines. It's available in the net. You can search and you can take it. I will show it in the next slide, the two numbers. Remaining many numbers are available for many things, separate disease conditions also it is available, and counseling services it is available, hotlines, mental health hotlines, many things are available, but you move on to the right path. And next one is WHO resources. Just you can go to the World Health Organization website. There you can see many courses related to mental health, certificate courses. If you study that, if you learn that, you know how to support the people. So if we utilize the resources properly, automatically we can support the people. And our organizations, if any people are there for providing the counseling or something, we can use that contact numbers also. So these are the resources and supports, we can use it. So I told you, so immediate mental health support 988 can call, and the Ministry of Health has been given the number, that number also, psychosocial and mental health support number has been given. This also you can use it, you can give to other people, those who are in need. Global initiatives and progress. So globally, few initiations has been taken place. The WHO's Mental Health Gap Action Program and Mental Health United Nation Crisis Response Framework. एक्चुअली हम लोग पहले देखे थे हम लोग क्या क्या करना है, वो यहाँ पे ऑलरेडी उन लोग करके रखे हैं, बट अवर कंट्री में हम लोग यहाँ पे तो वो सब चीज को करने का जरूरत पड़ रहा है, हम लोग करके ऑलरेडी रख चुके हैं, और ग्रास रूट्स एफर्ट। सो ये सब चीज में हम लोग को सपोर्ट के थ्रू हम लोग और प्रोग्रेस, ग्लोबली इनिशिएटिव है, बट हम लोग उसको आगे प्रोग्रेस करने के लिए हम लोग के कंट्री में भी उसको अच्छे से करने के लिए हम लोग मेहनत करना जरूरी पड़ रहा है इसी टाइम पे। दिस इज द मेन रीजन इस साल का थीम ये बना है, क्योंकि असेस के बारे में हम लोग बहुत चीज देखे हैं, और असेस करने के बाद उनकी वो कैटास्ट्रोफिस एंड इमरजेंसी में उनको हम लोग हेल्थ केयर कैसे देंगे। सो फ्यूचर डायरेक्शंस अभी बहुत ज्यादा चलता है एआई। सो एआई के थ्रू हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके भी मेंटल हेल्थ को डिलीवरी कर सकते हैं, और पॉलिसी डेवलपमेंट इमरजेंसी के लिए करवा सकते हैं, और क्रॉस बॉर्डर एंड रीजनल कोलैबोरेशन हम लोग के जहां का बस नहीं सोचना है, हम लोग अगल बगल वाले से भी हम लोग कोलैबोरेट करके भी कुछ मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स करके हम लोग और अच्छे से करवा सकते हैं इसको। सो क्लोजिंग मैसेज, आई होप it might be beneficial for everyone, you might be gain some knowledge and you might be motivated through this webinar, and my closing message is
मेंटल हेल्थ इज अ ह्यूमन राइट। हम सबका राइट है मेंटली हेल्दी रहना। सो क्राइसिस है, वी मस्ट इंक्लूड द माइंड नॉट जस्ट द बॉडी। कभी भी आप लोग को ऐसे कोविड-19 में बहुत लोग ऐसे ड्यूटी में गए होंगे, एज ए स्टूडेंट भी आप लोग गए होंगे, एज ए स्टाफ भी गए होंगे, बट आप लोग कहाँ ध्यान दिए? उनका कोविड का ट्रीटमेंट फिजिकली कैसे देना। बट इसके बाद कभी ऐसे आपका डिजास्टर में कहीं पे भी मौका मिलेगा, try to concentrate on the mind. So, care must include the mind, not just the body. So, let's build a world where access to mental health care is never an afterthought. So, हम लोग ऐसे वर्ल्ड को क्रिएट करें, वो मेंटल हेल्थ नेक्स्ट है। हाँ, पहले फिजिकल देख मेंटल में जाए, ये नहीं सोचना, ऐसे लेके जाना है। क्यों? एक एग्जाम्पल बता रही हूं। एक इंसान मेंटली हेल्दी है तो शरीर में कितने भी प्रॉब्लम हो उसको ओवरकम करके वो आ सकता है, और मेंटली वीक है उनका शरीर और बीमारी में पड़ेगा। सो मेंटल हेल्थ इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Conclusion: mental health is essential. It is not optional. Never keep it in the optional. And access must be prioritized during crisis. Crisis time पे people को जल्द से जल्दी mental health मिल जाए, उसके लिए हम लोग मेहनत करना है। As the ending quote, as per the WHO, there is no health without mental health.